Hello dear students, a very warm welcome in today's session. In today's session we are going to visualize the topic fractions. I hope you have studied about fractions with our lectures. So firstly we are going to study that what is fraction. फ्रैक्शन होते क्या हैं इसके बारे में ज़रा हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सबसे पहले अ फ्रैक्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट यूनिट, which means that if I am saying you are having a pizza and that pizza is having 6 slices, okay, so the slice that you are eating, the one slice, that is the fractional part of the whole pizza, which means 1 upon total slices, which means 6, right? So this is fraction, which means a part of a whole, okay. After that, for instance, 3/5 is spoken as 3/5. Now there is one rule that whenever you are speaking a fraction, whenever you are pronouncing a fraction, you have to speak like this. If you are speaking 3/5, you have to say 3/5. In this fraction, the whole is divided into 5 identical parts. Now what is the whole part? The denominator is going to represent the whole part, okay. After that, there are 3 parts that we have selected, okay. So the numerator is going to depict or denote the selected parts of the fraction and the denominator is going to denote whole parts of the fraction, right? After that, the numerator which is 3, यानी कि जो numerator है 3 वो क्या indicate कर रहा है? The quantity of parts taken, which means selected, and the denominator which is 5 signifies the total number of equal parts, right? After that, everyday fractions we commonly encounter include half, which is denoted as 1/2, quarter, which is represented as 1/4. अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच. थ्योरेटिकल अप्रोच देख देख के तो आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे. तो थ्योरेटिकल अप्रोच के कंपैरिजन में बहुत अच्छा अप्रोच है हमारे पास, वो है हमारे वर्चुअल लैब्स. तो वर्चुअल लैब्स में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसको हम कैसे वर्चुअली समझ सकते हैं. So without wasting time, let's get started. Here you can see you are on your student learning portal. इधर आपको मैथमेटिक्स लैब्स का एक ऑप्शन मिल रहा होगा. इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, after that you will be seeing there is a topic fractions intro, right? इस पे आप क्लिक कर देंगे and after that इंट्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शंस को विजुलाइज कर सकते हैं. लेट्स सी, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पे ये कंप्लीट पार्ट है, कंप्लीट पार्ट, तो इस कंप्लीट पार्ट को हम होल पार्ट भी बोलते हैं. दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 1/1. आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, इट इज रिटन एज 1/1, राइट? आफ्टर दैट इफ आई एम सेइंग कि इसको मैं यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, यानी कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस होल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो how we are going to pronounce it? Because we can see कि जो colored part है वो 1 है and total parts are 2. That is why it is written as 1/2. Okay. After that, if I am saying इसको मैं 3 parts में divide कर दूं, तो 3 parts में अगर मैं सिर्फ एक part को color कर रहा हूं तो I am going to write the numerator as 1. आप देख सकते हैं right hand side पे, and after that the denominator is total 3. Okay. After that एक चीज़ और, यहाँ पे अगर मैं एक और part insert कर दूं, यानी कि मैंने टोटल कितने पार्ट सेलेक्ट किए? 2 पार्ट्स, राइट? द सेलेक्टेड और टेकन पार्ट्स आर 2 एंड दैट इज व्हाई आप न्यूमरेटर में देख सकते हो राइट हैंड साइड पे देयर इज 2 रिटन, ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज रिटन 3. फाइन. आफ्टर दैट इफ आई एम राइटिंग like if I am taking 3/3, which means I am taking the whole, right? 3/3 is going to give you the answer as 1. Okay. After that एक चीज़ और यहाँ पे हम करते हैं, हम यहाँ पे 2 पैलेट्स और इंक्लूड कर देते हैं. और अब ज़रा देखते हैं कि इधर से मैंने इस वाले में इसको इंसर्ट किया, इस वाले में इसको इंसर्ट किया, एंड देन अगेन इधर भी 2 इंसर्ट कर दिए. अब ज़रा आप ध्यान से देखिए कि हमारे टोटल डिवाइडेड पार्ट्स कितने हैं. डिवाइडेड पार्ट्स, हम टोटल डिवाइडेड पार्ट्स हमेशा कितने लिखेंगे? द वन which we have divided, that is 3. यानी कि होल को आपने कितने में डिवाइड किया? 3 में. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3. बट व्हेन इट कम्स टू द टेकन पार्ट, तो टेकन पार्ट जितने पैलेट्स में होंगे उन टेकन पार्ट्स को आप काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. सो दैट इज व्हाई द टेकन पार्ट्स आर 5 एंड वी हैव रिटन 5/3, इसीलिए हमने उसको 5/3 लिख दिया.
ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम फ्रैक्शन को इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है केक। केक खाना आपको पसंद तो हो गई, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं इस केक को कंप्लीटली यहाँ पे रख दूँ, कंप्लीट का मतलब होल पार्ट रख दूँ, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 by 1, राइट। दिस होल केक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1 by 1। बट अब मैं इस केक को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, लेट्स से 3 and 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने जो पोर्शन यहाँ पे लिया है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस पोर्शन को मैं बोलूंगा क्या, 1। एंड टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास, 4, एंड दैट इज व्हाई द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 4, राइट। अगर आप इतना सा फ्रैक्शन, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन अगर आप खा लेते हैं, तो आपने कितना फ्रैक्शन खाया केक का, 1 by 4 फ्रैक्शन खाया, राइट। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे मैं एक और केक का पार्ट रख दूं, तो दिस बिकम्स 2 by 4। इफ आई एम पुटिंग वन मोर पार्ट, सो इट बिकम्स 3 by 4, and then again if I am putting one more part, it becomes 4 by 4, which means a complete cake, that is 1, right? So this is how you can visualize fraction with the help of cake as well. Okay, after that बात करते हैं नंबर लाइन पे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं फ्रैक्शन को, right? नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए मैंने सोचा कि यहां पे मैंने पार्ट कर दिए हैं टोटल पार्ट्स 2, 3, 4, 5 and 6। मान लीजिए मैंने 6 पार्ट्स टोटल कर दिए हैं, तो याद रखिए नंबर लाइन पे आप कैसे पार्ट्स करेंगे, 0 से 1 के बीच में आप 6 पार्ट्स कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपने टोटल 6 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। 6 पार्ट्स आपको विजुलाइज हो रहे हैं। लेकिन अब इन 6 पार्ट्स में मैं कहता हूं आप मुझे सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट करके बताइए, यानी कि 2 by 6 रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये तो हो गया 0 by 6, नेक्स्ट बिकम्स 1 by 6 एंड देन नेक्स्ट बिकम्स 2 by 6, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये आपका 2 by 6 हो गया। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। या फिर अगर मैं कहता कि मेरे पास मैंने टोटल पार्ट्स कर दिए 8, अगर मैंने 8 पार्ट्स कर दिए तो सेकंड पार्ट सेकंड हो जाएगा। वहीं मैंने कहा फिफ्थ पार्ट कौन सा होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 5 by 6 ये हो गया, ठीक है। लेकिन 8 by 8 क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे 6 by 7 by 8 एंड 8 by 8, ठीक है। 8 by 8 1 पे आ जाएगा बिकॉज इट इज अ whole part, right? So this is how we are going to represent the fraction with the help of number line. Okay, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शन को विजुलाइज कर सकते हैं, नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, इसमें मैंने क्या कर दिया है कि वाटर फिल कर रखा है, लेट्स से, ठीक है। और अगर मैंने कहा इसमें टोटल 8 लेवल्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 लेवल्स हैं टोटल मेरे पास। इन 8 लेवल्स में मैंने 4 लेवल्स को फिल कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एंड यू हैव एंजॉयड दिस सेशन लॉट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू रिवाइज दिस सेशन वंस अगेन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फ्रैक्शन वंस अगेन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।